टू सोशल स्टडीज़ सेंट्रल। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी हिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। सो प्लीज़ बी विद मी फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है फॉर योर बोर्ड्स। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। Who among the following was the French artist who prepared a series of 4 prints, visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics? A. Giuseppe Mazzini, B. Frederick Suro, C. Napoleon Bonaparte, D. Otto von Bismarck. कौन थे वो फ्रेंच आर्टिस्ट? So the answer is Frederick Suro. Moving on to question number 2. What was the main purpose of Civil Code of 1804, which is also known as Napoleonic Code in France? A. To establish democracy, B. To abolish all privileges based on birth, C. To support the church, D. To grant voting rights to women. क्या था main purpose? Main purpose था to abolish all privileges based on birth. Question number 3. Which of the following treaties recognized Greece as an independent nation in 1832? 1832 में ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन किस ट्रीटी ने रिकॉग्नाइज किया था? ट्रीटी ऑफ वियना, बी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, सी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, डी ट्रीटी ऑफ लंदन. सो द आंसर इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. Fourth, when France sneezes, the rest of Europe catches cold. Who made this famous remark? A. Duke Metternich, B. Mazzini, C. Garibaldi, D. Otto von Bismarck. क्या होगा आंसर? आंसर विल बी ड्यूक मेटरनिक. ड्यूक मेटरनिक ने ये बोला था, ये स्टेटमेंट दी थी. ही वॉज व्हाट? ही वॉज अ कंजर्वेटिव. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड द ज़ोलावेरियन formed in 1834 in Prussia represent? A. A trade union, B. A customs union, C. A political alliance, D. A military coalition. क्या रिप्रेजेंट करती है ज़ोल्वेरियन? A custom union. Moving on to question number 6. Who founded the secret society Young Italy and Young Europe? Young Italy and Young Europe किसने फॉर्म की? तो किसने की? A. Victor Emmanuel II, B. Count Cavour, C. Giuseppe Mazzini, D. Giuseppe Garibaldi. किसने फॉर्म करी थी यंग इटली एंड यंग यूरोप? आंसर इज गिउसेप्पे मज़ीनी. ग्रेटेस्ट एनिमी किसने बोला था? ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये किसने बोला था मज़ीनी को? तो ये बोला था ड्यूक मेटरनिक ने. ड्यूक मेटरनिक ने बोला था मज़ीनी को कि ही इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 7. The main architect of German unification was? जर्मन यूनिफिकेशन के मेन आर्किटेक्ट कौन थे? ए. केसर विलियम वन, बी. ओटो वन बिस्मार्क, सी. नेपोलियन थ्री, डी. एडोल्फ हिटलर. सो आंसर इज ओटो वन बिस्मार्क. इनकी कौन सी पॉलिसी थी? इनकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी. Question number 8. Who was proclaimed the first king of United Italy in 1861? A. Victor Emmanuel II, B. Mazzini, C. Cavour, D. Louis Philippe. So answer क्या होगा? Victor Emmanuel II. Question number 9. Which of the following was the allegory of German nation वियरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स? ओक लीव्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओक लीव रिप्रेजेंट करते हैं हीरोइज्म. ठीक है, तो जर्मन की एलिगरी क्या थी? ए. मेरियन, बी. ब्रिटानिया, सी. जर्मेनिया, डी. भारत माता. तो आंसर क्या होगा? ए होगा. नहीं, जर्मन का पूछा है तो जर्मन का क्या है? सी. जर्मेनिया. मेरियन किसकी थी एलिगरी? फ्रांस की. एलिगरी का मतलब क्या होता है? यूजिंग अ फीमेल फिगर. Using a female figure to represent an abstract idea. An abstract idea like liberty and freedom. मेरियन किसकी एलिगरी थी? फ्रांस की.
Question number 10. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called A. Prussia, B. Balkans, C. Scandinavia, D. Sardinia. क्या था आंसर? So the answer was Balkans. और बाल्कन के रेजिडेंट्स को क्या बोलते थे? स्लेव्स बोलते थे. किसके कंट्रोल में थे? ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे. क्वेश्चन नंबर 11. What does the crown of oak leaves won by Germania signify? A. Peace, B. Heroism, C. Willingness to make peace, D. Beginning of new era. हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्या सिग्निफाई करता है? हीरोइज्म. क्वेश्चन नंबर 12. The objective of the Treaty of Vienna 1815 was to. ऑब्जेक्टिव क्या था ट्रीटी ऑफ वियना का? A. Restore the monarchies overthrown by Napoleon, B. Introduce new laws for education, C. Unify Germany and Italy, D. Grant independence to Greece. तो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था? बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर कर दिया गया था. मेन पर्पस था कि नेपोलियन ने जो भी काम चेंजेस किए थे उनको अंडू करे. चेंजेस जो नेपोलियन लेके आया था उसको अंडू करे. तो टू रिस्टोर द मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन. बर्बन डायनेस्टी वापस से फ्रांस को दे दी गई, फ्रांस में एस्टेब्लिश कर दी गई. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ. एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से क्या फॉर्म हुआ? ए. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी. रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, डी. जर्मन एम्पायर. क्या फॉर्म हुआ? सो द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. Who was the hero of red shirts in the Italian unification process? A. Garibaldi, B. Cavour, C. Mazzini, D. Victor Emmanuel. सो इसका आंसर क्या होगा? गेसिपी गैरिबाल्डी. इसको क्यों बोले जाते थे? इसके जो वॉलंटियर्स थे उनको क्या बोला जाता था? रेड शर्ट्स बोला जाता था. इन्होंने कौन सी एक्सपीडिशन करी थी? यू विल टेल द नेम ऑफ द एक्सपीडिशन इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में बताओ. क्वेश्चन नंबर 15. इन विच सिटी डिड महात्मा गांधी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया इन 1917? पहला सत्याग्रह कहाँ पे लॉन्च हुआ महात्मा गांधी द्वारा? आंसर इज चंपारण. क्यों किया गया था? पीजेंट्स के सपोर्ट में किया गया था. बिकॉज पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए. तो इंडिगो पीजेंट्स के सपोर्ट में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 16. वाई वॉज द रोलेट एक्ट टर्म्ड एज एन ऑप्रेसिव लॉ? रोलेट एक्ट को और क्या बोला जाता है? ब्लैक एक्ट बोला जाता है. क्यों? ए. इट बैंड रिलीजियस गैदरिंग्स, बी. इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, सी. इट इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, डी. इट प्रोहिबिटेड इंडियंस फ्रॉम यूजिंग सोल्ड. सो द आंसर इज बी. इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. 2 साल तक क्या कर सकते थे? जेल में डाल सकती थी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को विदाउट एनी ट्रायल. ट्रायल ना चले 2 साल तक वो फिर भी जेल में है. नो मैटर वो इनोसेंट है, फिर भी अगर वो कल को इनोसेंट भी प्रूव हो जाएगा ना, तब भी उसको वो 2 साल तक रख सकते हैं बिना ट्रायल के जेल में. तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बढ़ रहे थे. Which incident led to the withdrawal of non-cooperation movement in 1922? A. जलियांवाला बाग मैसेकर, B. चोरी चोरा इंसिडेंट, C. डांडी मार्च, D. अरेस्ट ऑफ बाबा रामचंद्र. सो आंसर क्या है? चोरी चोरा इंसिडेंट. चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था. क्यों? बिकॉज यहाँ पे महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी? नॉन वायलेंस. लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने क्या कर दिया था? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 18. द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलिएशन ऑफ ए. द शाह ऑफ ईरान, बी. द खलीफा ऑफ तुर्की, सी. द मुगल एम्परर, डी. द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. क्या आंसर होगा? द खलीफा ऑफ तुर्की. क्वेश्चन नंबर 19. हु रोट द फेमस बुक हिंद स्वराज? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. बाल गंगाधर तिलक. किसने लिखी थी हिंद स्वराज? सो द आंसर इज महात्मा गांधी. क्वेश्चन नंबर 20.
द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड इन इंडिया बिकॉज, साइमन कमीशन को क्यों बॉयकॉट किया गया? A, it recommended high taxes. B, there was no Indian members in it. C, it supported the Rowlatt Act. D, it was led by British General. Please remember, जब तक I am discussing the answers, अपने खुद से आंसर्स करो, इवेल्युएट करो एंड सी कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, राइट? एंड कमेंट डाउन योर स्कोर्स, अपने स्कोर्स कमेंट में मेंशन करो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 20. साइमन कमीशन को क्यों बॉयकॉट किया गया था? बिकॉज साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. और कौन सा स्लोगन इंडियंस ने क्या स्लोगन लगाए जब साइमन कमीशन इंडिया में आया? साइमन गो बैक. क्वेश्चन नंबर 21. एट विच कांग्रेस सेशन वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज अडोप्टेड? पूर्ण स्वराज किस कांग्रेस सेशन में अडोप्ट किया गया? ए, कलकत्ता सेशन. बी, नागपुर सेशन. सी, लाहौर सेशन. डी, मद्रास सेशन. तो इसका आंसर क्या है? सी, लाहौर सेशन. लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन. क्वेश्चन नंबर 22. द दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. डी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सी, क्विट इंडिया मूवमेंट. डी, खिलाफत मूवमेंट. क्या आंसर होगा इसका? द आंसर इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. यहाँ पे उन्होंने कौन सा लॉ तोड़ा था? सॉल्ट लॉ तोड़ा था. दांडी में इन्होंने क्या किया? पानी को उबाला, उससे सॉल्ट बनाया एंड सॉल्ट लॉ ब्रेक किया. कब स्टार्ट हुआ दांडी मार्च? 12 मार्च 1830. 12 मार्च 1830 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ. Who organized the Dalits into Depressed Classes Association in 1930? A, महात्मा गांधी. बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सी, ज्योतिराव फुले. डी, पेरियार रामास्वामी. क्या आंसर होगा? सो द आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. क्वेश्चन नंबर 24. द पूना पैक्ट 1932 वॉज साइन बिटवीन. पूना पैक्ट किन किन के बीच में साइन हुआ था? ए, गांधी एंड लॉर्ड इरविन. बी, गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सी, नेहरू एंड जिन्ना. डी, बोस एंड गांधी. किसके बीच साइन हुआ? गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. अब इसकी वजह से, इस पूना पैक्ट की वजह से क्या हुआ? जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनको प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल्स में क्या मिल गई? रिजर्व सीट मिल गई. ओरिजिनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या मांगा था? सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था. लेकिन गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में नहीं थे एंड उन्होंने क्या बोला? ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा लेकिन रिजर्वेशन दी जाएगी टू द डिप्रेस्ड क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 25. हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? भारत माता की पहली इमेज किसने क्रिएट करी थी? ए, रविंद्रनाथ टैगोर. बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. सी, अबिंद्रनाथ टैगोर. डी, नंदलाल बोस. सो द आंसर इज अबिंद्रनाथ टैगोर. वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन द ईयर 1870. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. What was the main demand of peasants of अवध अंडर बाबा रामचंद्र? क्या डिमांड थी मेनली peasants की? ए, लैंड फॉर द लैंडलेस. बी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एबोलिशन ऑफ बेगार. सी, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल. डी, सपोर्ट फॉर द खिलाफत कोर्स. सो क्या आंसर है? आंसर इज बी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एबोलिशन ऑफ बेगार. क्वेश्चन नंबर 27. द स्वराज फ्लैग designed by Gandhi in 1921 featured A, a spinning wheel in the center. B, a crescent moon. C, 8 lotuses representing provinces. D, a picture of Bharat Mata. तो आंसर क्या है? A spinning wheel in the center. Question number 28. Who sang the popular hymn Raghupati Raghav Raja Ram during the Dandi March? A, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर. बी, सरोजनी नायडू. सी, राजगोपालाचारी. डी, अब्बास त्याबजी.
आंसर क्या है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इसमें गांधी जी ने थोड़ी सी लिरिक्स में चेंज किया एंड उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये क्यों लेके आए? टू शो मुस्लिम एंड हिंदू यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 29, what was the first book printed by जॉन गटनबर्ग? जॉन गटनबर्ग ने पहली बुक कौन सी प्रिंट करी थी? ए द बाइबल, सी द डायमंड सूत्रा, सी एनेड, डी यूटोपिया। सो द आंसर इज द बाइबल। 3 इयर्स में कितने प्रिंट निकाले थे? कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 30, द ओल्डेस्ट जैपनीज बुक प्रिंटेड इन 868 AD इज ए सामवेद, बी डायमंड सूत्रा, सी रामायणा, डी बाइबल। आंसर क्या है? बी डायमंड सूत्रा। जापान में हैंड राइटिंग प्रिंटिंग कौन लेके आया था? सो इट वॉज चाइनीज मिशनरीज। Question number 31. Who among the following was the Catholic reformer who wrote against the print culture fearing it would lead to rebellious ideas? A. Martin Luther, B. Erasmus, C. Menocchio, D. Gutenberg. कौन था अगेंस्ट में प्रिंट कल्चर के? सो द आंसर इज इरेस्मस। क्वेश्चन नंबर 32. Printing is the ultimate gift of God and the greatest one. Who said this? A. Charles Darwin, बी मार्टिन लूथर, सी रूसो, डी वोल्टेयर। आंसर क्या है? मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट वर चैप बुक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिंट कल्चर? चैप बुक क्या थी? ए रिलीजियस स्क्रोल्स, बी पॉकेट साइज बुक सोल्ड बाय पैडलर्स, सी गवर्नमेंट गेजेट्स, डी लग्जरी एडिशन फॉर किंग्स। आंसर क्या है? पॉकेट साइज्ड बुक्स सोल्ड बाय पैडलर्स। सिमिलरली फ्रांस में ऐसी ही बुक्स को क्या बोले जाता था? बिब्लियोथिक ब्लू। क्यों? बिकॉज उनका जो कवर होता था वो ब्लू होता था, इसलिए उनको बिब्लियोथिक ब्लू बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 34. इन इंडिया द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्रोट बाय ए ब्रिटिश ट्रेडर्स, बी पोर्चुगीज मिशनरीज, सी फ्रेंच एक्सप्लोरर्स, डी मुगल एम्परर्स। आंसर क्या है? पोर्चुगीज मिशनरीज। कहाँ पे लेके आए थे? पहली बार गोवा में लेके आए थे, मिड 16th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 35. हु पब्लिश संबंध कौमुदी in 1821 to spread social reform ideas? A. राजा राम मोहन रॉय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी दयानंद सरस्वती। आंसर क्या है? ए राजा राम मोहन रॉय। नाउ यू विल टेल मी कि इसके अगेंस्ट, इसके रिप्लाई में जो हिंदू कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? कमेंटेड डाउन। जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ एंड कमेंट के लिए बोल रही हूँ, यू विल हैव टू कमेंट इट डाउन 1 2 3 ऐसे करके। प्लीज डू विद द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 36. द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वॉज मॉडल्ड ऑन दी। किसके ऊपर बेस्ड था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट? ए आयरिश प्रेस लॉज, बी अमेरिकन प्रेस लॉज, सी फ्रेंच सेंसरशिप, डी जर्मन प्रेस कोड। सो द आंसर इज आयरिश प्रेस लॉज। Question number 37. Who wrote Gulamgiri in 1871 focusing on the injustices of the caste system? गुलामगिरी किसने लिखी थी? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिराव फुले, सी ई वी रामास्वामी नायकर, डी श्री नारायणा गुरु। किसने लिखी थी? ज्योतिराव फुले ने। क्वेश्चन नंबर 38. Why did the colonial government pass the Vernacular Press Act? कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट क्यों पास किया? टू प्रमोट लोकल लैंग्वेजेस, सी टू सेंसर नेशनलिस्ट रिपोर्ट्स, सी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पेपर, डी टू एडुकेट द मासेस। आंसर क्या है? टू सेंसर नेशनलिस्ट रिपोर्ट्स। वर्नेकुलर प्रेस किस पे एप्लीकेबल था? सिर्फ उन न्यूज़पेपर्स पे एप्लीकेबल था जो लोकल लैंग्वेज में पब्लिश होते थे। ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर था जिसने रातों रात अपनी लैंग्वेज बंगाली से बदल के इंग्लिश कर ली थी? बिकॉज वर्नेकुलर प्रेस एक्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पे अप्लाई नहीं होता था। टेल मी। द बंगाल गैजेट, द फर्स्ट वीकली मैगजीन इन इंडिया, वो स्टार्टेड बाय
ए जेम्स ऑगस्टस सीके, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी विलियम क्रे, डी राजा राम मोहन रॉय। आंसर क्या है? ए जेम्स ऑगस्टस सीके। क्वेश्चन नंबर 40, which popular religious text was published in many vernacular languages due to print? ए रामचरितमानस, बी अर्थशास्त्र, सी वेदास, डी मेघदूत। आंसर क्या है? रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 41, the main route that linked distant part of Asia, Europe and Africa in ancient time was? ए कॉटन रूट, बी सिल्क रूट, सी स्पाइस रूट, डी गोल्ड रूट। आंसर क्या है? बी सिल्क रूट कनेक्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 42, विच फूड आइटम इज बिलीव टू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू द वेस्ट टू बिकम स्पेगेटी? ए नूडल्स, बी पास्ता, सी पिज्जा, डी बर्गर। आंसर इज ए नूडल्स। क्वेश्चन नंबर 43, the discovery of which continent in the 16th century changed the global trade patterns? A ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी अंटार्कटिका, डी एशिया। आंसर इज बी अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे फूड वेराइटीज़ थे जो वर्ल्ड को नोन नहीं थे। एग्जाम्पल पोटैटो, टमाटोज, मेज, ये सब अमेरिका में था बट इट वॉज नॉट नोन टू दी वर्ल्ड। लेकिन बाद में अमेरिका से ही पूरे वर्ल्ड में वो इंट्रोड्यूस हुए। Question number 44, which deadly disease was used as a biological weapon to conquer the original inhabitants of America? A smallpox, B plague, C malaria, D cholera। आंसर क्या है? स्मॉलपॉक्स, क्योंकि उनमें अभी तक इतनी इम्यूनिटी नहीं आई थी बिकॉज दे वर नॉट नोन टू दी वर्ल्ड। वो वर्ल्ड के साथ कभी कंबाइन ही नहीं हुए थे, दे वर आइसोलेटेड। इस वजह से स्मॉलपॉक्स उनमें जल्दी फैला, वो बीमार हुए और बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ है उनकी डेथ भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 45, द लेजेंडरी सिटी ऑफ गोल्ड सर्च्ड फॉर बाय यूरोपियंस इन साउथ अमेरिका वाज? ए एल्डोराडो, बी अमेजन, सी इनका सिटी, डी एटलांटिस। सो द आंसर इज एल्डोराडो। क्वेश्चन नंबर 46, इन द 1840s a terrible famine occurred in Ireland due to the failure of which crop? किस क्रॉप के फेलियर की वजह से फेमाइन आई आयरलैंड में? ए राइस, बी पोटैटो, सी वीट, डी मेज। आंसर क्या होगा? बी पोटैटो, क्योंकि पोटैटो वहाँ पे ना स्टेपल फूड बन गया था फॉर दी पुअर। एंड जब पोटैटो फेलियर हुआ, पोटैटो क्रॉप फेलियर हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग भूखे मर गए। क्वेश्चन नंबर 47, द राइंडर पेस्ट वॉज अ डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज दैट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द 1880s फ्रॉम? ए एशिया, बी यूरोप, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। सो आंसर क्या है? आंसर है एशिया। अंटिल द 18th सेंचुरी विच टू कंट्रीज वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट? 18th सेंचुरी तक कौन सी दो कंट्रीज वर्ल्ड रिचेस्ट थी? इंडिया एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वॉज नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका? ए चिलीज, बी पोटैटोज, सी मेज। इनमें से कोई भी नहीं एंसेस्टर्स को नोन था बिफोर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। ये सभी अमेरिका को डिस्कवर जब किया तब से जानी जाने लगी ऑल ऑफ द अबव। अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? कमेंट में बताना कि किसने अमेरिका को डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 50, द मेन रीजन फॉर द यूरोपियन अट्रैक्शन टू अफ्रीका इन द लेट 19th century was its? ए वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स, बी एडुकेटेड वर्कफोर्स, सी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशंस, डी एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या आंसर होगा? मेन रीजन क्या था यूरोपियन अट्रैक्शन का अफ्रीका की तरफ? ए वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स, क्योंकि वास्ट लैंड थे, रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे अफ्रीका में, सो देयरफॉर दे वर अट्रैक्टेड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग सेट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 to 100। ठीक है, तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में रिपीट हो सकते हैं बार बार। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द सोशल स्टडीज सेंट्रल। लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन द आंसर्स जो भी मैंने पूछे हैं आपसे।